Hello guys, good morning. Continuing the series of tenses, just now we are doing past continuous tense, the second subtype of past tense. Yes, second subtype of past tense. Yes, let's see the form of past continuous tense, or we can say that what is the rule of past continuous tense. Subject was, were plus v4 मतलब I have already told many times that v4 is present participle which represented first form plus ing, and ing form represent the continuing of the work. Yes, subject was, were. Was, were will come according to the subject. According to the subject, we put was or were. Yes, we have already done the 5 forms of verb, and in our first video of verbs, in the introductions of verb, which verb represent the which time of action, and we have already done the be form, and we know very well the first form of be is are or am, and fifth form is which is used in present tense. Present continuous tense. In present continuous tense we use is, are, am as an helping verb, and in past tense, past continuous tense, as an helping verb we will use the second form of be, was, were, because we are doing past tense, and was, were is the past form of be. So we will put was, were in past continuous tense as helping verb. Now I, he, she, it. With I, he, she, it will be used was, and you, we and they. You, we and they we will use were. Yes, I, he, she, it और कोई भी सिंगुलर पर्सन के साथ लगेगा was, you, we और they, और कोई भी प्लूरल पर्सन के साथ क्या लगेगा were. Past continuous tense is mainly used for past action in progress. Past में जो action जो है progress पे था उसके लिए हम mainly use करेंगे past continuous tense. For example, he was busy in reading last night. Last night he was busy in reading. He was busy in reading. किस पे busy था? Reading में. I was having dinner with my uncle at 9 PM. I was having dinner. मैं ले रहा था डिनर कर रहा था किसके साथ? अपने अंकल के साथ at 9 PM. And when they came, I was doing my work. I was doing my work. Doing my work shows the continuous progressive actions of the sentence, and when they came, when a sentence interrupted in progressive action या progressive task, then we will use the which sentence interrupt the second action which is already on progress, तो उसके साथ हम V2 लगाएंगे. एक एक्शन जो लगातार कंटिन्यू था पास्ट में, और दूसरा जो है एक्शन साथ के साथ होता है उसको आकर इंटरप्ट कर देता है बीच में, तो उसके साथ हम V2 लगाएंगे, और इसमें क्या लगाएंगे हम? वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड वॉज, वर. So past continuous tense talks about an unfinished ongoing action in the past. इसलिए जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो हमें पास्ट में जो प्रोग्रेसिव एक्शन है, जो ऑनगोइंग एक्शन है, उसको शो करता है.
In mentioned examples, the past continuous and simple past were used together when a new action happened in the middle of a longer action. तो जो मेंशन किए हैं एग्जाम्पल में, तो उसमें पास्ट सिंपल टेंस वहाँ यूज़ होगा, एक पास्ट सिंपल टेंस और जो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है वो इकट्ठे ही यूज़ होंगे जब एक्शन जो है वो एक्शन के जो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो घटित होता है, कोई एक्शन चलता है और उसके बीच में जो आकर के कोई दूसरी घटना आकर के घटित होती है, तो उसके लिए भी हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे. द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग. वाइल आई वॉज रीडिंग, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्टीन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब. तो जब मैं पढ़ रहा था तो क्या हुआ, लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई. तो इंटरप्शन किसने किया, लाइट ने. तो यहाँ पर हम V2 यूज़ करेंगे और इसमें हम P की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई सॉ हिम ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल. व्हेन आई सॉ हिम, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल. तो कंटिन्यू कौन सा एक्शन था, प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल. तो V4 है. अब इंटरप्शन किसने किया, जब मैंने देखा, तो बीच में इंटरप्शन हुआ कि जब वो खेल रहा था तब देखा, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म. इफ वी मेंशन अ फिनिश्ड एक्शन दैट इंटरप्टेड द कॉन्टिन्यूस एक्शन, इट इज़ इन द सिंपल पास्ट फॉर्म. तो हमने देखा कि किस प्रकार से एक एक्शन जो है जब कॉन्टीन्यूस एक्शन जो है वो ख़त्म होने से पहले ही क्या हो जाता है, दूसरा जो एक्शन होता है उसके साथ साथ वो उसे आकर इंटरप्टेड हो जाता है कॉन्टीन्यूस एक्शन किसी दूसरी वर्ब के कारण. तो वो जो दूसरी वर्ब है वो कौन सी वर्ब होगी, सिंपल पास्ट टेंस की सेकेंड फॉर्म. नेक्स्ट है, इट वॉज रेनिंग व्हेन शी लेफ्ट. यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग व्हेन शी लेफ्ट. जो कॉन्टिन्यू एक्शन था वो था रेनिंग की, कॉन्टिन्यू जो है रेन हो रही थी और किसने तब उसने वो गई, यानी तब उसने वहाँ से निकली. तो इट वॉज रेनिंग व्हेन शी लेफ्ट. जो कॉन्टिन्यू जो है बारिश हो रही थी और बीच में क्या हुआ, इंटरप्शन की, वो चली गई. Past continuous tense is also used for a definite arrangement for future. तो definite arrangement होती है फ्यूचर की, पक्की जो अरेंजमेंट होती है उसके लिए भी हम continuous tense का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he was leaving that night. वो उस नाइट जो है वो चला गया था, जा रहा था. तो I asked her that what she was doing next Sunday. मैंने उससे पूछा कि वो नेक्स्ट संडे क्या करने जा रही है, क्या कर रही है, मतलब क्या करेगी. तो इसमें जो है यहाँ पर भी कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ होगा, अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर टाइम. डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन पास्ट. तो डेफिनेट अरेंजमेंट जो है फ्यूचर के लिए, तो वहाँ पर भी हम क्या है, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे. या कुछ वर्ड होते हैं जो वर्ड इंडिकेट करते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को, वाइल, स्टिल, एट दैट मोमेंट एंड देन, THEN. तो ये वर्ड जो है इंडिकेट करते हैं दैट द एक्शन इज कंटिन्यूइंग, वाज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट. लेट्स सी सम एग्जांपल of past continuous tense in different type of sentences. Affirmative sentence, negative sentence, interrogative and negative interrogative sentence. Yes, affirmative में देखिए, I was reading the book. Negative में क्या हो जाएगा, verb के साथ जो है, जैसे यहाँ पर था subject was या वर आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि ING फॉर्म. इसी तरह से नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है पहले आके फिर आ जाएगा वॉज वर और वॉज वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, नॉट, ओके, और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म. इसी तरह इंटेरोगेटिव में वॉज आई रीडिंग द बुक,
वॉज आई रीडिंग द बुक। इंटेरोगेटिव में आपको हमेशा मैंने सभी टेंसेस में, प्रेजेंट के सभी टेंसेस में आपने यही किया है कि सब्जेक्ट से पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, वॉज, और सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या आएगा आपका, नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। तो सब इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर और सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के आफ्टर क्या आएगा, नॉट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। सो इस तरह से और एग्जाम्पल देखेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। दे वर गोइंग टू हॉस्पिटल, दे वर नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल। And were they going to hospital, question mark, were they not going to hospital, again question mark। ये देखिए नेक्स्ट, she was cooking the food, she was not cooking the food in negative। and interrogative में देखिए was she cooking the food, question mark, and interrogative negative में was she not cooking the food। तो ये थे guys examples of continuous, past continuous tense। So thank you, I hope that you have understood very well, and you must have to the practice exercise, to do the practice exercise from your exercise book, and you will understand very well these tenses। Okay students, thank you।